So today we'll start with quadratic equation. So quadratic equation is a part of algebra. Sorry. So quadratic equation is the part of algebra. And algebra itself is quite large, so it comprises of quadratic equation, then AP, GP, then spatial equations, then inequalities, then logs, modulus. So it's all comprised of algebra. And cat में इसके related you will find around 8 to 10 questions. So it's not like तुमने quadratic कर लिया तो algebra का question बन ही जाएगा. एक ही question में quadratic के भी concepts लगेंगे, logs के भी concepts लगेंगे, indices right, indices भी रहता है, उसके भी concepts लग सकते हैं. तो to master algebra you should be a master of all these topics. But इसका अच्छा part क्या है कि it needs a lot of practice. Once you are thorough with your concepts, you can crack any question. So it will be around, there will be around 8 to 10 questions, so around 24 to 30 marks. So you need to practice a lot to master algebra. Coming back to so the first chapter in algebra will be quadratic equation. So what is a quadratic equation? And any expression of the form ax square plus bx plus c, where the highest power is 2. So any expression of the form ax square plus bx plus c will be called a quadratic equation. But a can be 0, so the highest power will be x plus c. तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं, प्रोवाइडेड a, b, c are real numbers and a should not be equal to 0. So what is a quadratic equation? Any expression of the form ax square plus bx plus c where a, b, c are real numbers and a should not be equal to 0. So like root 2x square plus 7x plus 9, this is a quadratic expression. Root 2 is real number, right? What are real numbers? That can be expressed in number line. So any number that can be expressed in number line is a real number. Minus 1, 1, 2, minus 2, anything. Minus 1.967, like this. What are complex number? That cannot be represented on a number line. They that have minus, negative inside the root. So now we know what is a quadratic equation. Now we'll discuss about the graphical representation of a quadratic equation. Graphical representation of quadratic equation. So how can we make a graph out of the quadratic equation that we have? So suppose we have one expression like x square plus 4, and we have to plot a graph. Let's say this are y-axis and this is our x-axis. So let's say this is equal to y. So I have to plot a graph between x and y. So
कोई भी एक्सप्रेशन हो, नॉट नेसेसरली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन, कैसा भी एक्सप्रेशन हो, एक y और x के बीच में एक ये इक्वलिटी दी है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ कुछ वैल्यू पुट करूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x की भी वैल्यू मिलेगी, राइट? तो मैं क्या करूँगा, और x की वैल्यू मिलेगी, और अगर मैं उसको यहाँ नंबर ये कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करूँगा तो मुझे ग्राफ मिलेगा। दैट विल बी द ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन। So let's say I have one x and y. So अगर मैं x की वैल्यू let's say सबसे पहले मैं रखता हूँ 0, और हमेशा ग्राफ की वैल्यू निकालने के लिए एक बीच का सेंटर लो 0, -1 -2 -3 1 2 3। ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐड के लिए तो इतना पता नहीं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए नॉलेज की कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन रहा है, कैसे वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0 अगर लेता हूँ तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, मैं इस क्वेश्चन में y की x की जगह रखूँगा 0, तो 0 + 4 4, तो y की वैल्यू आएगी 4। मतलब अगर मेरा x 0 था तो y की वैल्यू कितनी हुई, 1 2 3 4, तो मेरा पॉइंट क्या होगा, ये वाला। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे फिर -1 रखूँगा तो -1 विल बी +1, क्योंकि स्क्वायर है, 1 + 4 5, तो यहाँ की वैल्यू आएगी 5। तो जब मेरा x -1 था तो y की वैल्यू कितनी थी, 5, तो 5 यहाँ कहीं होगा। यहाँ x पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, यहाँ y पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पे। अगर मैं -2 रखूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, और ऊपर यहाँ पे कहीं होगा ये -2 और यहाँ से 8, ऐसे ही देखते हैं। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अब अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो 5 आएगी, या 2 रखूँ तो 8 आएगी, मतलब यहाँ भी यही आ रही है 2। देखिए ये, तो मतलब अब सारे पॉइंट, अब मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दूंगा, तो मेरा क्या आया, पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा ग्राफ आता है वो होता है पैराबोला। किसी भी एक्सप्रेशन की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसका ग्राफ क्या आएगा, पैराबोला। अब हो सकता है वो पैराबोला आइदर एक्सेस को इंटरसेक्ट करे, ना करे, या बस छू के चला जाए, दैट विल सी लेटर, बट फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द ग्राफ विल बी पैराबोला ऑलवेज। नाउ अभी हमने देखा कि x² + 4 का ग्राफ था, वो कुछ ऐसा था, x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करा था उसने। ये मेरा एक्सप्रेशन है x² + 4। अगर मैं एक और एक्सप्रेशन लूँ, -3x² + 5x - 2, और अगर मैं इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करूं तो जैसे x की वैल्यू सबसे पहले मैं क्या रखूँगा, 0 पे रखा तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, -2, तो क्या आएगा, y की वैल्यू आ गई -2, ये आया, राइट। x की वैल्यू 0 रखी तो सॉरी x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे -2, या। और अगर मैं इसके बाद अगर मैं रखता हूँ -1 तो मेरी आ जाएगी -10, तो अगर मैं यहाँ -1 रखूँ तो यहाँ पे आएगी -10, यहाँ कहीं जाएगा, ऐसे ही करूँगा मैं।
तो आप देखोगे ये ग्राफ जा रहा है वो ऐसा जाएगा, पैराबोला तो बन रहा है बट दैट वाज अ अपवर्ड पैराबोला एंड दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ दिस ए। कभी भी अगर ए हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसका जो पैराबोला होगा वो हो जाएगा अपवर्ड। मे बी कि सिर्फ ऊपर से चला जाए, हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस कट करता हुआ चला जाए, हो सकता है टच करता हुआ चला जाए। लेकिन अगर ए मेरा दैट इज द एक्सप्रेशन, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इफ इट इज पॉजिटिव तो a is always greater than 0 or vice versa. If a is greater than 0, if a is positive, the graph will always be upward. तो एक क्वेश्चन आ सकता है किसी एग्जाम में कि ग्राफ दिए हुए हमें को, या फिर कुछ ऐसा उसमें कंसेप्ट लग सकता है कि ऐसे हमें ग्राफ दिए और हमें एक्सप्रेशन बताना है। तो सबसे पहले अगर ग्राफ दिए और कोई अपवर्ड है तो जहाँ जहाँ ए नेगेटिव हो रहा होगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर हमारा ग्राफ अपवर्ड है तो ए शुड बी पॉजिटिव ओनली। इसमें भी that a will be negative, either कट ना करें, either सिर्फ कट करता हुआ चला जाए, either बस छू के चला जाए, कट ज़्यादा करें। अब ये हम बाद में देखेंगे कब कट करता है, कब छू के चला जाता है, कब बिल्कुल ही कट नहीं करता है। लेकिन these three graphs, beside these three graphs there will be no other graph. So ये 6 ग्राफ ही हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी कंप्राइज करते हैं। आओ अब हम देखते हैं, अब हम केस ले रहे हैं पहले फॉर ए ग्रेटर देन 0 के लिए। ए ग्रेटर देन 0 के लिए क्या केस होगा? अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 है एंड मेरा बस ये छू के चला गया ग्राफ, ठीक है, तो एक्स एक्सिस दैट मीन्स पहले हम देखते हैं अगर ये ऐसे काट के जा रहा है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग एक्स इज इक्वल टू 0 एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, और वो जो 2 पॉइंट होंगे वो ही हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। अगर मेरा ये -2 और 3 पे कट कर रहा है तो मेरा जो फैक्टर होगा वो होगा मेरा जो रूट्स होंगे वो मेरे होंगे -2 और 3। मतलब मेरा एक जो फैक्टर है वो है मेरा x+2 और जो मेरा एक फैक्टर है वो है मेरा x-3। ये दोनों फैक्टर होंगे मेरे इस इक्वेशन के। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा जितनी बार मेरा ग्राफ मेरी एक्स एक्सिस को कट करेगा मुझे उतने ही रूट्स मिलेंगे। मेरा जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर कट करता है तो हमेशा 2 ही बार करेगा, वरना छू के चला जाएगा या फिर ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि ये नीचे जाता है और फिर ऊपर भी आने ही रहता है इसको। तो ये 2 बार। अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा कुछ है तो ये कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो ये 4 रूट्स हो गए इसके। अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा जाता बस तो 1 2 3, तो मेरे इसके 3 रूट्स हो गए। व्हाट आर रूट्स? रूट्स आर नथिंग बट जब ये हमारे एक्सप्रेशन को 0 करे। If the value of expression px becomes 0 for any value of alpha, it means that x minus alpha is a factor of that expression. और रूट्स क्या होंगे?
रूट्स जहाँ हमारा जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो 0 आ रही है, वो सॉरी जो हमारे रूट्स क्या होंगे, अगर मैं मेन इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करूँ तो मेरे मेन पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए। लाइक अगर मेरा -3x² + 5x - 2 एक एक्सप्रेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे, सर इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2/3 और 1। अगर मैं 1 पुट करूं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, -3 + 5 - 2, सो इट विल बी 0। सो मेरा एक रूट कौन सा मिल गया मुझे, 1। दूसरा रूट -3 2/3, 2/3 4/9 + 5 2/3 - 2 3 -4/3 + 10/3 - 2। तो अगर मैं इसको 3 से करना है तो ऊपर नीचे कर दूंगा तो 6/3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0। तो मेरा एक 1 हो गया और एक हो गया मेरा 2/3। सो दीज आर माई 2 रूट्स। अगर मेरा ग्राफ सिर्फ ऐसे चला जा रहा है, ऊपर से ही चला जा रहा है, मीन्स देर इज नो रूट, देर इज नो रियल रूट। क्योंकि टच ही नहीं कर रहा है, जो रियल नंबर लाइन होती है उसको टच ही नहीं कर रहा है, तो नो रियल रूट। अगर मेरा ऐसे ही टच होके चला जा रहा है तो, या फिर यहाँ से नहीं जा रहा, यहाँ से टच होके चला जा रहा है तो जिस पॉइंट पे टच होके जा रहा है वो मतलब मेरा यहाँ 2 बार आ रहा था, लेट्स से दिस पॉइंट इज अल्फा, तो मेरा ये ऐसा एक्सप्रेशन रहा होगा। तो एक बार ये हो गया, दूसरी बार भी यही हो गया, दोनों को इससे करेंगे तो x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा। दैट इज वाई इट इज जस्ट टचिंग दिस लाइन, क्योंकि अगर 2 बार टच करता तो इसकी वैल्यूज अलग अलग हो जाती हैं, एक ही बार है तो एक ही बार टच करेगा। सो हमने देखा अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं। एक बन सकता है जो ये रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, एक बन सकता है जो पॉइंट अल्फ़ा, और एक बन सकता है जो कोई है ही नहीं। सो अगर यहाँ पे रहेंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा रहेगा ये, इसके 2 फैक्टर होंगे, x - अल्फ़ा x - बीटा, इसका x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर और इसका कुछ नहीं, तो वही फैक्टर नहीं रहेगा। सो ये a ग्रेटर देन 0 की बात हुई। और इसमें वन मोर थिंग, अब इसमें हम ये भी पता कर सकते हैं, अगर हमसे ग्राफ लेके पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कब पॉजिटिव है, जब ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, बाकी सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक में नेगेटिव है, बाकी सब जगह पॉजिटिव है। नाउ अगर मेरा ग्राफ मुझे ऐसा मिल रहा है तो किसी भी पैराबोला का ग्रेटर देन 0, किसी भी पैराबोला का हम मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट ही फाइंड कर सकते हैं, एक ही पैराबोला का मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट नहीं हो सकता, राइट। तो जैसे मेरा ये पैराबोला है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला इज अपवर्ड, तो अपवर्ड पैराबोला में मुझे यहाँ तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो आई कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, राइट, लेकिन मैं मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि बस यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये मिनिमम है, बाकी ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो इट वुड बी मैक्सिमम, और जैसे जैसे नीचे जाएगा मिनिमम। और सबसे मिनिमम कहाँ होगी, बिल्कुल स्टेप पॉइंट पे। अब स्टेप पॉइंट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, x इज इक्वल टू -b/2 है, लेकिन ये आया कहाँ से, ये आया यहाँ से कि अगर मेरा कोई भी, मान लो ये मेरा एक्सप्रेशन है x प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0,
मतलब ये एक्सप्रेशन है और इसके रूट्स मैंने बताया अल्फा और बीटा है, मतलब ये अल्फा रहा होगा, ये बीटा रहा होगा। किसी भी, अब बस इतना एरिया अगर हम कंसीडर करें, इतना, तो इसका मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए, मतलब सबसे नीचे, इसका हाफ लेंगे ये पॉइंट निकालने के लिए। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय 2 लिया होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमें पता है, माइनस बी बाय ए, और ये 2 पहले से है, माइनस बी बाय 2 है। सो इसी के कारण हमारा आया ये मिनिमम वैल्यू। तो और हमारा जो ये मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे होगी। मिनिमम वैल्यू तो ये है, लेकिन ये कौन से पॉइंट पे है, ये पॉइंट निकाला है अभी हमने, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और ये वैल्यू क्या होगी वो अभी हम निकालेंगे। उसके लिए भी एक फार्मूला है, तो वो तो डायरेक्ट याद ही रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत लंबा डेरिवेशन है उसका। उसका जो फार्मूला है वो है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। सो जो मिनिमम वैल्यू है वो मिलेगी मेरी x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब ये मिनिमम वैल्यू आई कहाँ से, मेरे को x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे पता चल गया मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a इस इक्वेशन में लिख दूँ, a इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस बी अपॉन 2a प्लस c। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो हमें कोई अलग से अगर वो वाला फार्मूला याद नहीं भी करना है तो ज़रूरत नहीं है, बस x की वैल्यू निकालो, माइनस बी बाई 2 है वो मेन इक्वेशन में पुट कर लो। बट सिंपल सा फार्मूला है और बाकी फार्मूले से मिलता जुलता हुआ है तो याद करने में आसानी रहेगी। तो अभी हमने a इज़ ग्रेटर देन 0 का देख लिया। a इज़ ग्रेटर देन पे हमारा जो ग्राफ होता है वो होता है अपवर्ड, एंड वी कैन कैलकुलेट ओनली मिनिमम वैल्यू। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और मिनिमम वैल्यू होगी क्या, वो होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, और a लेस देन 0 पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ग्राफ आएगा अब वो क्या होगा, इसका अपोजिट बिल्कुल, ग्राफ होगा हमारा डाउन साइड। नाउ अब अगर डाउन साइड है तो अब ये तो नीचे नीचे जाती जाएगी, तो अब हम इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नॉट मिनिमम वैल्यू। मिनिमम तो कहीं भी नीचे नीचे यहाँ भी पड़ी हो सकती है। So we can calculate only maximum value in case of a less than 0। वो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, यहाँ भी अल्फा बीटा है रूट्स, तो अब जो होगा वो यहाँ भी वही सेम ही रहेगा, अल्फा बीटा बाय 2। अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई 2 है, तो यहाँ भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस बी बाई 2 है। और अगर माइनस बी बाई 2 है, सेम इक्वेशन है, पुट कर रहा हूँ, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a यही होगी। अब लेकिन इसका क्या करें, मतलब दोनों एक्सप्रेशन तो मैंने सेम लिखे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम कौन सा है। फर्स्ट जो भी होगा आइदर मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, दोनों एक हो ही नहीं सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आइदर उसका मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। दूसरा हमें यहाँ
ए पहले वाले केस में पॉजिटिव था तो उससे कुछ और रिजल्ट आएगा, इस केस में ए या नेगेटिव है तो यहाँ पे कोई और रिजल्ट आएगा। तो जो हमारा इक्वेशन होगा और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो दोनों दूसरे आएंगे। तो ये इट्स जस्ट अ फार्मूला, इसमें नेगेटिव साइन हमने कंसिडर नहीं किया है। तो अगर ए नेगेटिव है तो हमें यहाँ नेगेटिव ए करना पड़ेगा। लाइक जैसे -3x² + 2x + 5 है तो हमारा जो, और यहाँ पे है 3x² + 2x + 5, a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0। तो -b/2a कितना हो जाएगा, -2/2a, और यहाँ कितना होगा -2/2a, तो -2/6, और यहाँ कितना हो जाएगा -2/-6, तो यहाँ हो जाएगा -1/3 और यहाँ हो जाएगा 1/3। और उसको एक्सप्रेशन को सॉरी इस x की वैल्यू को हम एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ। एक अंडरस्टैंडिंग होगी तो अच्छा रहता है। बाकी कुछ फॉर्मूलेज हैं। फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तो पता ही है। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तक हम बात कर रहे थे एक्सप्रेशन की, अब बात कर रहे हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? एक्सप्रेशन इज लाइक एनीथिंग विच इज नॉट इक्वेटेड टू एनीथिंग, लाइक ax² + bx + c, this is my expression, but when I am equating it to something like this, equating to 0, now this become an equation. So जो अब हमारा बाकी का चैप्टर है, this is about equation, quadratic equation. So this is the standard form of any quadratic equation. And let the root of this equation be, let the root of this equation be alpha and beta. So हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। इसको भी हमें याद रखना है ना। यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/2a, अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, सॉरी -b/a एंड c/a। तो अगर हम इसकी वैल्यू -b/a अल्फा प्लस बीटा की रखेंगे यहाँ और अल्फा इंटू बीटा की रखेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। सो इस वीडियो में इतने ही कवर करते हैं। जस्ट समराइजिंग, a greater than 0, a less than 0, 3 graphs here, 3 graphs here, sorry, minimum value, maximum value, x is equal to -b/2a पे वो minimum value, x is equal to b/2a -b/2a पे वो maximum value, and ax² + bx + c is equal to 0, mean equation x² - alpha + beta x + alpha beta is equal to 0, equation when the roots are given, and alpha plus beta -b/2a, alpha into beta c/a, all a, b, c are real number and a is does not equal to 0. So we'll go further in our next video. For this video